Today we are going to study the antibodies. Antigens हमने पढ़ा. These are the foreign substances that stimulate the immune system. कल हमने ये पढ़ा ना, ये पढ़ा कल. The foreign substance that stimulate the immune system. What is an immune system? Immune system are the antibodies, right? Today we will study about the antibodies. Today we will study. मैंने आपके सामने डायग्राम भी रखा है. This is an antigen, right? And this is an antibody, isn't it? कल हमने एंटीजन के डिस्कशन किया, राइट? किनके एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस आया, तो किन के साथ पहला इनका मिलाप होता है, राइट? वो भी हमने पढ़ा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट? अब हम आज इस एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे. अच्छी तरह से सादिया, अच्छी तरह से मेरी तरफ हैव फुल कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मी. रुफायदा, राबिया, हैव एन फुल कंसंट्रेशन. सादिया, please be have a good network. Yes, have a good network there. Yesterday you were disconnecting from time to time. Today have a good network at your home, right? Yes. What are the antibodies? इसी की definition फाड़ कर. Antibodies are defined as the protective chemicals. Protective chemicals. I am writing it here. What are the antibodies? Protective chemicals. Important, very important. एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस एंटीबॉडी, इस इम्यून सिस्टम. प्रोटेक्टिव केमिकल्स कहां से आते हैं? प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय द, डिफाइंड एज द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल. यानी यहां पर अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव वो केमिकल जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, कौन प्रोड्यूस करते हैं? इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करके हैं. किसके रेस्पॉन्स में करते हैं? किसके रेस्पॉन्स में करते हैं? हाँ साजा, किसके रेस्पॉन्स में करते हैं प्रोड्यूस? एंटीजन के प्रोड्यूस, एंटीजन के रेस्पॉन्स में. वेरी गुड राविया, एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं. The chemicals, the protective chemicals that are produced by the immune cells in response to the antigens. In response to the antigens are called the antibodies. Are called the antibodies. Don't get confused. Don't get confused, Sadia. Don't get confused, Sadia, with these antibodies are also known as immunoglobulins. Immunoglobulins. इम्यूनो या इम्यूनो कहते हैं, इम्यूनिटी है ना, वहीं से निकला इम्यूनो. आई एम ट्राइंग टू राइट इम्यूनोग्लोबुलिन्स. Immunoglobulins. Antibodies are also known as the immunoglobulins, right? सादिया, इसको रिपीट कीजिए, मैंने डेफिनेशन किया, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सादिया, डेफिनेशन रिपीट कीजिए. है वहां पे राबिया, आप ही जल्दी से बता. राबिया जल्दी से बता, पता नहीं उसका नेटवर्क खत्म हो गया. Sir, antibodies are protective chemicals that are produced by immune cells in response to antigens. Very good. And they are also called as immunoglobulins. Immunoglobulins. इनका केमिकल नेचर क्या होता है? इनका केमिकल नेचर होता है, दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. What is the chemical nature of it? They are the glycoproteins. What are they made up of? Glycoprotein, glycogen and protein. They were discovered by the Emil von Behring. Very important. ये जरूरी मेरा Emil von Behring. These protective chemicals are chemically the glycoproteins, and these were discovered by the Emil von Behring. And right, Emil von Behring. I have written it here. यहाँ पर ऐसा ही लिखा जाता है. Shall I write it again, or you have written it, Sadia? Did you write it, or have you write it again? हमने लिखा. Very good. Emil von Behring. Or these are the tetrapod. I will put a definition, Rabia. I will put a diagram in front of you, right? These are the tetrapeptides. These are the tetrapeptides. This is the one of the tetrapeptides.
These are the these are the tetrapeptides. Mahvish, Mahvish, Mahvish. Huh. Repeat. I am repeating it. Sadia, have in concentration. These are the glycoproteins. These are tetrapeptides. Four हैं. These are the one, right? One. This is one, second, third, and four. Four chains, four peptide chains are there. These at why they are called the tetrapeptides. These are called the tetrapeptides. मैंने बताया इनको, कल बताया मैंने कि इंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस, बी lymphocytes and dendritic cells, right? These are enclosed by the T helper cells. This antigen is then enclosed by the T helper cells. They stimulate. हाँ, यहां पर अब मसला आ गया. जब कल हमने पढ़ा इंटीजन को इनक्लोज किया हेल्पर सेल्स ने, टी हेल्पर सेल्स में जो डब्ल्यूबीसीज में होते हैं, तो टी हेल्पर सेल्स ने एक सब्सटेंस बनाया और स्टिमुलेट किया प्लाज्मा बी सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा बी सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया. प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया और प्लाज्मा बी सेल्स ने ये एंटीबॉडी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर दिए. Right? So these immunoglobulins are produced by the plasma B cells. When the antigen is enclosed by the T helper cells, on the membrane of the macrophage or the B lymphocyte or dendritic cells, it is enclosed by the T helper cells that stimulates the B plasma cells and they produce the antibodies and then they kill the antigen. They produce the antibodies then, and these antibodies then kill the pathogens. Right? These कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सादिया, remember it in the NEET. These plasma B cells are known as the factories of the antibodies. Which cells are called the factories of the antibodies? Plasma B cells. मैंने आपको सादिया, राबिया, मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि एंटीजन आ गया, एंटीजन को इनक्लोज कर दिया मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, जिनको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इनको फिर इनगल्फ कर दिया, इनक्लोज कर दिया टी हेल्पर सेल्स ने. टी हेल्पर सेल्स ने स्टिमुलेट किया प्लाज्मा बी सेल्स एंड देन दे प्रोड्यूस्ड द एंटीबॉडीज like this antibody. Right? Antibodies क्या होते हैं? Tetrapods, and these are the glycoproteins. And a single antibody, very important, a single antibody produces about 2000 molecules of, remember it, 2000 molecules of antibodies per second. A single B plasma cell produces about 2000 molecules of antibodies per second. Understand? 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 Yes, sir. Every B plasma cell, when there comes the stimulation from the T helper cells, that you had to produce now the antibodies that will eat the pathogen that has come to me, that has come to my contact, to produce the antibodies. The every B plasma cell then produces the 200 molecules of the antibodies per second. हाँ, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, what it is a structure like? Sadia, what is the structure like? Rabia, what it is structure like? It is Y-shaped. It is, and कितने हैं? 4 peptide chains are there, tetrapods. 4 peptide chains. Right? Y-shaped tetrapeptides. अगर आप देखेंगे इसमें Yes, sir. दो तरह की chains हैं. This is the light chain, L chain,
and this is the heavy chain. heavy chain. यानी ये टेट्रापॉड्स होते हैं जिसमें दो चेन्स लाइट होते हैं और दो चेन्स हैवी होते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, किस तरह कि वन वन एंटीबॉडी डू कंटेन्स द L2H2 चेन्स, दो लाइट चेन्स, दो हैवी चेन्स, राइट? Understand? Yes, sir. Y-shaped Yes, sir. tetrapods consisting of the two light chains and the two heavy chains. Two heavy chains, and they are connected to one another by a bond that is known as a disulfide bond. That is known as a disulfide bond. Right? Tetrapods, Yes, two sir. light chains, two heavy chains, and connected to one another. These chains are connected to one another by the disulfide chains, by the disulfide bonds, by the disulfide bonds. Bond. Is it okay? Is it clear? Yes, sir. साजिया रिपीट Yes, कीजिए, sir. साजिया रिपीट कीजिए, जल्दी से जल्दी जल्दी से। मैं कहाँ से? पहले से हाँ नहीं नहीं नहीं, बस बस ये इसका Structure. स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, यस। वाई शेप्ड होता है और इसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स और 2 हेवी चेन्स, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। Very good, very good. Sadia, did you understand all these things? Is now crystal clear to you? Yes, sir. Rufaida, Danishmir, Amir, is this crystal clear to you? Everyone, is this crystal clear to you? Rufaida, is this crystal clear to you? Yes, sir. Shall I move forward? Yes, sir. वेरी गुड। हम Yes, sir. यस हम एक एक पढ़ लेंगे, ये मगर याद भी रखना आपको, दिस इज अ डिफिकल्ट बट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह राबिया, सादिया, इफ यू विल बी नेक्स्ट ईयर इन द मेडिकल कॉलेजेस, you will be, this will be required, and most you will remember, dear me, you will remember throughout my life to me, but they at least in the medical colleges, if you next year you will be medical charge, you will be remembering the what this sir has taught us, and if we did study is here। देखो ये लाइट चेन और हैवी चेन का हम स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। लाइट चेन का अगर हम देखेंगे, लाइट चेन का देखो, ये लाइट चेन्स, इसमें मैंने दो, इसके गूगल ने इसके दो कलर्स रखे हैं। ये क्यों दो कलर्स रखे हैं अभी पता चलेगा आपको। ये इनका जो लाइट चेन है ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 डाल्टन्स, 25,000 डाल्टन्स। The molecular weight of the molecular weight of the light chain is about 2,500 daltons, right? 25,000 sorry, perhaps I told you 2,000, 25,000 daltons, 25,000 daltons, yes, sir. right? इसके मैंने बताया आपको दो पार्ट्स हैं, राइट? इसके मैंने बताए ये दो पार्ट्स हैं। ये क्या दो पार्ट्स हैं? देखो, इसमें एक पार्ट होता है दैट इज फॉर्मड ऑफ द सिमिलर, that is former of the similar type of the amino acids. When we are called it a peptide chain, so it means automatically they are made of the amino acids। ये दो पार्ट्स क्या इस स्ट्रक्चर के बताया जाता है, it is be reported by the scientists that it is made up of the two parts, one part, one part, that this outer part, did you see this? It is coming to me, I am making the arrows here, this yellow shaped, this yellow shaped of the light chain। Saja, did you see it? Did you No, see it? sir, आ ही नहीं रहा है। आ नहीं रहा है, No, sir. व्हाइट बोर्ड आ रहा है। Light chain का yellow color, sir. हाँ हाँ, येलो कलर जो है इसको मैं मार्क भी करता था, शायद आपको नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है Sir, वो इसको। mark नहीं आ रहा है, sir. ये तो मीटिंग क्लोज करनी थी फिर आना था, तो मेरे ख्याल में उसे टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह देखिए फिर ये जो येलो चेन है ना, येलो कलर, ये येलो कलर है, color, हाँ yes, येलो sir. कलर में इसने रखा है, गोल वाली ने येलो कलर में रखा है। दिस इज दिस चेन, इट इज सेड दैट इट इज मेड अप ऑफ द variable various types of the amino acids, whereas there the sequence varies, the sequence varies from the chain to chain, their sequence varies from the chain to chain, and इस part को कहते हैं outer variable region। क्या कहते हैं इसको? outer variable region।
क्योंकि इट इज अमोनियो एसिड चेन जो है दैट वेरीज इसको कहते हैं आउटर वेरिएबल रीजन एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट देयर आर अबाउट 108 अमोनियो एसिड्स in a variable chain. There are about 108 amino acids and दूसरा है inner chain, that is the inner constant region. Outer variable region consisting of the 108 amino acids, that is variable, but inner region that do possess the constant sequence of the amino acids, and it consists of about 109 to 204 amino acids. I did discussed you with about the light chain. The light chain about molecular weight is 25,000 daltons. There are about 214 amino acids in the light chain. It is divided into two parts. Outer variable region that consists of the 108 amino acids and the inner constant region that consists about 109 to 204 amino acids. Crystal clear? Crystal clear? Yes, sir. क्रिस्टल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सादिया। Yes, sir. आप देखिए ये जो ऊपर वाला इसके ये दांत जैसे बने हुए हैं ये आप अभी पढ़ेंगे क्योंकि यही तो क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, यही पैराटॉप बनाता है जो किसके साथ मिलता है, कल मैंने पढ़ा है, जो किसके साथ मिलता है सादिया, एंटीजन के साथ। एंटीजन के साथ। इंटीजन किस पार्ट के साथ, उस पार्ट को क्या कहते हैं, एंटीजन का। हाँ रुफैदा आपको पता होगा, रुफैदा उस एंटीजन का इंटीजन नो 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 इंटीजन उस पार्ट को क्या कहते हैं, आई हैव द डायग्राम इन मी, राइट, आई विल पुट द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, दिस बाइंडिंग लॉक एंड की मेथड कल मैंने बताया था, ये लॉक एंड की, एक तो पैराटॉप मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था एपिटॉप, राइट, पैराटॉप किसके साथ मिलता है, पैराटॉप, दिस इज द पैराटॉप एंड दिस the indigenous part that binds with the amino acid is known as the epitope, is known as the epitope, right. मैंने बताया लाइट चेन के दो रीजन्स हैं, आउटर वेरिएबल रीजन एंड द इनर कांस्टेंट रीजन, आउटर वेरिएबल रीजन 108 अमीनो एसिड, इनर कांस्टेंट रीजन 109 to 204 regions. This light, this heavy chain, this heavy chain, it has also the two parts, but its molecular weight is about the 50,000 daltons. आप देखेंगे ये हाफ इसका लाइट चेन इसका हाफ है, जब वो 25,000 है तो इसका तो डबल होगा 50,000 डाल्टन इसका हैवी चेन होगी, और इसमें 440 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी ये डबल होता है किससे, ये डबल अबाउट द डबल ऑफ द लाइट चेन, about the double of the twice the long of the light chain. इसके भी दो रीजन्स होते हैं, आउटर वेरिएबल रीजन, ये देखिए that consists about 118 amino acids and the inner constant region that is and the inner constant region that consists that has the rest of the amino acids, that has a rest of the amino acids 204 above amino acids, 200 to 200 above 200 above amino acids, right. Understand? Yes, sir. Is this any doubt, Sadia, is there any doubt, is there any doubt? फिर से बोलिए। मैंने बताया हैवी चेन जो है इसका सिंपल भाषा में आप बताइए, दिस इज डबल टू द लाइट चेन, in every sense it is double to the light chain. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 50,000 डाल्टन्स, इसके कितने अमीनो एसिड्स इसमें है, 440 अमीनो एसिड्स, यस। आउटर वेरिएबल चेन में जिसमें सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इज टोटली डिफरेंट, उसमें 118 अमीनो एसिड्स होते हैं, 200 से ऊपर इसके इनर कांस्टेंट रीजन में होते हैं, हाँ। जो इसका यहां पर एक, हाँ 118
अच्छा 118 लाइट चेन में 118 इस वेरिएबल रीजन में 118 अमीनो एसिड्स। यस सर सादिया आप रिपीट कीजिए सो दैट दिस विल राबिया विल लर्न। मेरा गला सूख जाता है ना। सर जो है सादिया कंफ्यूजन मैंने दोस्त अच्छा सादिया, अच्छा राबिया यू विल रिपीट इट सो दैट सादिया विल अंडरस्टैंड इट फुली। Use heavy chains such as a double cut light chains such as a 50,000 daltons molecular weight double host मतलब light chains use करा contain 440 amino acids तो اکھ منٛز تہِ چھُ آسان زٕ region اکھ چھُ آسان outer variable region بیٚیہِ چھُ آسان inner constant region یُس outer variable region چھُنہ تتھ منٛز چھُ آسان 118 amino acids تہٕ rest یِم چھِنہ آسان سُہ چھُ contain کران کُس inner constant region مطلب 200 above یِم چھِنہ آسان amino acids تِم چھِ کران contain वेरी गुड inner constant region शाबाश। तो सादिया अगर से अंडरस्टैंड गए तो वेरिएबल रीजन तो कांस्टेंट रीजन में क्या डिफरेंस है? अंडरस्टैंड जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सादिया। जो वेरिएबल region होता है इसमें मतलब जो वेरिएबल various types of amino acids होते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसमें कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ amino acids वेरी गुड स्किन्स कांस्टेंट होती है, उसमें वेरिएबल स्किन्स होती है, इसमें कांस्टेंट स्किन्स होती है। sequence वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है सादिया देखो, ये जो ऊपर इसके दांत बने हुए हैं ना, ये दांत जो इसके ऊपर बने yes हुए sir हैं, आप देखें ना, इसका मतलब है जो इसका पैराटॉप है वो किस रीजन से बना हुआ है? वो किस रीजन का बना हुआ है? कांस्टेंट रीजन का या वेरिएबल रीजन का? constant हाँ राबिया आप बताओ। वेरिएबल रीजन का इसे ऐसे ना आउटर सादिया सादिया क्या हो गया आपको? सादिया मैंने बताया जो आउटर हैज ए वेरिएबल स्किन्स, आउटर वेरिएबल रीजन इसको क्या क्यों कहा गया है? टू पार्ट्स आर देयर फॉर द चेन, वन इज द आउटर वेरिएबल रीजन एंड द सेकंड इज द इनर कांस्टेंट रीजन। दो चीजें याद रखिए, जरा इनको रिपीट कीजिए, टू पार्ट्स ऑफ द चेन, जल्दी से रिपीट कीजिए, टाइम फिर खत्म। one is the outer variable region and second one is inner constant region कांस्टेंट रीजन, ठीक है ना। देखो यहां पर मैंने बताया कि जहां पर ये बाइंड होता है, जहां पर ये बाइंड होता है तो इसको हम कहेंगे द बाइंडिंग ऑफ द इंटीजन पार्ट इज द वेरिएबल पार्ट, the binding part is a so paratop is the variable region, paratop is the variable region that binds the epitop of the indigen, that binds the epitop of an indigen, right? And here it forms when it binds the antigen epitope, then it is called the antigen antibody complex, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसा मैंने यहाँ पर डायग्राम रखा, आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैंने रखा हो, ये बना गया यहाँ पर, देखिए शायद परहैप्स नाउ इट इज कमिंग टू यू। राबिया आ गए, अब डायग्राम आई? हाँ, यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से इस वेरिएबल रीजन पर इंटीजन के एपिटॉप को किस तरह बाइंड कर रहा है ये, एंड दिस इज नोन एज द इंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। अंडरस्टैंड हुआ अब तक? क्रिस्टल क्लियर है सादिया? सादिया क्रिस्टल क्लियर है? yes sir वेरी गुड, yes sir वेरी गुड। अगर आप देखेंगे इसकी तरफ, अगर देखेंगे आप, ये जो इंटीजन एंटीबॉडी है, तो एक एंटीबॉडी इसके पास कितने पैराटॉप्स है? सादिया कितने पैराटॉप्स हैं इसके पास? दो हैं। सो दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड द बाइवेलेंट। when the antibody has the two binding regions, two paratops, then that antibody is called the bivalent। क्या कहते हैं इसको? बाइवेलेंट। शाबाश, राइट। अगर इसको हम यानी कि दो इंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होते हैं या पैराटॉप्स होते हैं, इसको हम बाइवेलेंट कहते हैं। अगर अदर साइड से हम देखेंगे सादिया, अगर हम इस तरह से भी देखेंगे, इसके दो हिस्से हैं, यहाँ पर देखिए, इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा जहां पर इंटीजन का एपिटॉप बाइंड होता है, और नीचे वाला हिस्सा,
इस हिस्से को, जिस हिस्से पर एपिटॉप बाइंड होता है, इसको कहते हैं फैब रीजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? फैब रीजन। इसने यहां पर गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग, एफसी रीजन इसने लिखा है। ये फैब रीजन है, फ्रैगमेंटल इंटीजन बाइंडिंग इसको कहते हैं। ये गलत यहां पर मेरे इसने गलत यहां पर दीजिए। दिस इज नोन एज ए फैब रीजन, FAB। एफ यहां पर मैं लिखना फैब रीजन। फ्रैगमेंट, कौन सा फ्रैगमेंट? इंटीजन बाइंडिंग, फैब रीजन। इसका क्या है? फ्रैगमेंट, वो फ्रैगमेंट दैट बाइंड इज द इंटीजन, that bind is the antigen. So antibodies have the two regions. One region that binds the antigen, this is known as the fragment antigen binding region, फ्रैगमेंट इंटीजन बाइंडिंग रीजन। और इसका जो सेटम बनाता है, नीचे जो सेटम बनाता है, इसको कहते हैं एफसी फ्रैगमेंट, यानी फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, एंड इट इज कॉल्ड द सेटम ऑफ एंटीबॉडी। It is called the setum of antibody. Right? Understand? Understand, Sadia? Rabia, understand? Amir, Danish, Pirzada, Hamdard, Hamad. Rufaida, crystal clear? Crystal clear to you? Crystal clear to you? हाँ, मैं कहता हूं कि अगर इसको हम डिवाइड इस तरह कहते हैं, हाँ, मैं कहता हूं अगर इसको डिवाइड कर देंगे कि ऊपर वाला हिस्सा जिसमें जहां पर बाइंडिंग रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं फैब, FAB, फ्रैगमेंट इंटीजन बाइंडिंग रीजन, फैब इंटीजन फ्रैगमेंट इंटीजन बाइंडिंग रीजन। यानी इस तरह भी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसके शाखस है, जिसके ब्रांचेस हैं, उस रीजन को कहते हैं फैब रीजन। क्या कहते हैं इसको? फैब की फुल फार्मूला मैंने बताई, फ्रैगमेंट इंटीजन बाइंडिंग रीजन। और जो इसका सेटम बनाता है नीचे, इसको कहते हैं FC रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ये इसके ब्रांचेस हो गए और ये इसका सेटम हो गया। Understand now? Sadia, clear now? Crystal clear now? Everyone, Danish Mir, Haya, Rufaida, Drabia, Amir, crystal clear? Yes, sir. Very good, very good, very good. अगर इस तरह से भी understand, I am very unfortunate to say to that student if it could not understand. अब सादिया क्या है कि जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को हम आर्टिफिशियली भी आज बताते हैं। आज कहते हैं ना, जिन्होंने लगाया है कौन सा वैक्सीन, सादिया कौन सा वैक्सीन लगाई गया? एस्ट्राजेनिका का कौन सा वैक्सीन आज लगाते हैं? कोविशील्ड। जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है, नाउ द रिजल्ट हैज कम, तो इनकी एंटीबॉडीज वीक हो रहे हैं, इनकी एंटीबॉडीज कम हो रहे हैं, दे आर गोइंग लेस डे बाय डे, देयर एंटीबॉडीज who have taken the dose of the Covishield AstraZeneca that has been manufactured by the Oxford University, इसके एंटीबॉडीज कम होते जा रहे हैं। इनका अब तीसरा डोज लगाना है, जिसमें एंटीबॉडीज इनको दिए जाएंगे, दैट इज नोन एज ए बूस्टर डोज। और फाइजर का डोज जिसके साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया है इंडिया ने, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर उसके साथ टाई अप ही नहीं है इंडिया का, तो वो यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं आया। तो इसका ये एंटीबॉडीज़ का यहाँ पर जिक्र आ गया कि एंटीबॉडीज़ अब दीज आर मेड अप ऑफ आर्टिफिशियली आल्सो, दीज आर मेड अप ऑफ आर्टिफिशियली। सादिया, आप कौन सा वैक्सीन आप करोगे? नाउ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द फाइजर एंड दिस कोविशील्ड, दिस इंडिया एंड द फाइजर। कुछ ये प्रश्न का से मशहूर का कुछ लाग फाइजर का। वेरी गुड। वो मगर महंगा पड़ेगा, 2000 रुपये का पड़ेगा। मगर 2000 रुपये दे देंगे घर पर? न्यूज बिचार देने के राय, वो क्या करिए। अच्छा, इनको कहते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इनको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं इनको? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वो कैसे बताए? इसको पहले जॉर्ज केहलर एंड सीजर मेल्स्टन ने डिस्कवर किया इन आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज को, जिनको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इनको पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज
कोहलर, जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टन। एंड कैसे इन्होंने किया, इनको हाइब्रोडोमा सेल्स के मैकेनिज्म के साथ उन्होंने इन एंटीबॉडीज को लाया और इनको कैंसर सेल्स में डाल दिया। कैंसर सेल्स रैपिडली होते हैं डिवाइड, और उनको उनमें डाल दिया गया, और दे एक्सट्रैक्टेड दीज एंटीबॉडीज from these myeloma cancer cells, and these are known as monoclonal cells। ये हमें पढ़ना है आगे, एंटीबॉडीज आगे भी पढ़ने हैं हमें, जब हम पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज के डिफरेंट काइंड्स हैं। एंटीबॉडीज अगर पढ़ेंगे हम एंटीबॉडीज, मगर आज उतना टाइम नहीं मिलेगा हमें सारिया, कल हम पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज के कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड्स आर देयर। इम्यूनो आईजीजी, इसको एंटीबॉडीज को मेडिकली कहते हैं आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। 5 काइंड्स हैं इस एंटीबॉडीज के। वी विल डिस्कस दे वन बाय वन टुमारो, क्योंकि आज का टाइम खत्म होने जा रहा है, तो इसलिए इनको हम कल वन बाय वन। आज का जो हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, सादिया, इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू? Yes, yes. Amir, is this crystal? Danish, everyone, crystal clear to you? Yes, sir. Very good, very good. Is there any doubt? Do anybody have any doubt? This session is getting close because time खत्म हुआ। अब हम ये 5 पढ़ लेंगे, ये बहुत टाइम खाएगा। It will not be clear today, Sadia. Am I allowed today to continue it tomorrow, Sadia? Yeah, very good, Sadia. Excellent, Sadia. Rufaida, is this crystal clear today's topic to you? Sadi Basha, in a simple language, I did try to understand you. Shall I take up, Sadia, Rufaida, Radia, Haya? Yes, sir. Shall I take up? I am taking off from all of you Yes. from today's topic. Today we will discuss it as kind as one by one. That is known as immunoglobulinism. And till then, I am taking off from all of you. To have a good day, all of you. Allah Hafiz. Ara püreki. Mınke uysamır.